ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬੈਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਊਟਕਮਸ ਫੇਵਰੇਬਲ ਟੂ ਈ, मतलब कि ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆਊਟਕਮਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਲ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ मतलब कि ਉਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਪੋਸੀਬਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟੇ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਟਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ मतलब कि ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਟਾ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ मतलब कि ਆਪਣੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ 15ਵੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਸਮ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ A ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2/3, B ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ -1.5, C ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 15% ਤੇ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 0.7%। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 2/3। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 2/3 ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ 0, 3 1 6 is equal to 18। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18 ਆ ਗਿਆ, 2 ਬਚ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ 0 ਉਤਰ ਗਈ, 3 1 6 is equal to 18, 2 ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਰੀ 2 ਬਚੀ ਜਾਏਗਾ, यानी कि अपने को जो आंसर निकल के आंदा है वो आंदा 0.66। जेकर आप 1 रुपए के अकॉर्डिंग चलिए तो 0.66 अपने को बन जाता 66 पैसा। तो ਇਹਦਾ मतलब ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ -1.5 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ -1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਕਮਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ B ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ -1.5। ਤਾਂ -1 ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, -1.5 ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ -1.5। 15%, 15% ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 15% ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 0.7 ਇਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 7। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ B। ठीक है जी।
हुण आपां करदे हां अपना नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम हैगा 5th। जेकर अपने कोले जेकर PE इज इक्वल टू 0.05 होवे, जो 5th सम है उहदे विच कहंदा जेकर PE इज इक्वल टू 0.05 होवे तां E नहीं होने की की संभावना होएगी। ठीक है, तो अपने को जो क्वेश्चन उसने पुट आउट किया है वो हैगा E नहीं होने दी की संभावना होवेगी। यही उसने अपन क्वेश्चन पुट किया है। जेकर बेटे आप इस तरीके का सम आप कोई करांगे 0.05 दिता होएगा तो अपन यह मनना पड़ेगा भी टोटल जी PE है वो कितनी है। ठीक है, मान के चलो, मान लो कुल संख्या कितनी है 1 है। ठीक है, जी कुल संख्या हैगी है 1 हैगी है, तो उसने अपन पूछा भी E नहीं होने की की संभावना होगी। आप इत्थे की लिखांगे E नहीं होने दी संभावना बराबर कुल संख्या माइनस PE। ठीक है, जो अपन PE दिता होया तो कुल संख्या आप मननी सी 1, PE अपने को दिता होया 0.05। ठीक है, तो हुण आप दसांगे भी E नहीं होने की संभावना की होएगी। 1 इत्थे लगा लेना, नाल 2 पॉइंट लगा लो, 0.05 लगा लो। आह 1 इधर कैरी किया 10 बन गया, 10 तो इधर कैरी किया 10 बन गया, 10 दे विचों 5 सबट्रैक्ट किया 5 आ गया, इत्थे रह गया 9, 9 दे विचों 0 सबट्रैक्ट किया 9.0, तो अपने को कितना आ जाएगा 0.95, जो अपने को होएगा E नहीं होने दी संभावना। आह अपने को एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा इसका। इस तरीके दे नाल बेटा ये जो 5th सम है वो इसका हल होना सीगा। हुण आपां करते हैं 6th सम। 6th सम दे विच कहंदा बेटे एक थैले दे विच 6th सम दे विच कहंदा एक थैले दे विच केवल नींबू दी महक वालियां मिठियां गोलियां हन। ठीक है, तो आप इत्थे रकम लिख लेने हैं, एक थैले विच नींबू दी महक वालियां गोलियां हन बराबर 1। आप ये मान लेने क्योंकि उसने कहा भी एक थैला है अपने को, एक थैले दे विच किहड़ियां गोलियां हन, केवल नींबू दी महक वालियां गोलियां हन। मालनी बिना थैले विचों देखे उस विचों एक गोली बाहर कड्ढदी है। मालनी कोई नाम दिता होया है, वह मालनी है जिहड़ी एक गोली बाहर कड्ढदी है। इसकी की संभावना है कि वह कड्ढी गई गोली। पहले नंबर पे तो उसने अपन पूछा संतरे दी महक वाली है, संतरे दी महक वाली है। ते दूजे नंबर पे उसने अपन पूछा नींबू दी महक वाली है, नींबू दी महक वाली है। यही उसने अपन 2 क्वेश्चन पूछे है। तो पहले नंबर पे आप करांगे संतरे दी महक वाली गोली दी संभावना, संतरे दी महक वाली गोली दी संभावना बराबर अनुकूल परमाणु दी संख्या बटा कुल परमाणु, अनुकूल परमाणु की संख्या बटा कुल परमाणु। तो हुण उसने अपन की क्या सी, उसने अपन क्या सी एक थैले दे विच नींबू दी महक वालियां गोलियां हन, यानी कि संतरे दी महक वाली गोली तो है ही नहीं है। जे संतरे दी महक वाली गोली नहीं है तो अनुकूल परमाणु की जेकर आप थैले विच हाथ मारांगे तो जदों उहदे विचों बाहर कढांगे चीज तो उहदे विचों कुछ भी बाहर
नहीं निकलेगा, मतलब की है संतरे की महक वाली गोली बाहर नहीं निकलेगी। तो अनुकूल प्रमाणों की संभावना कितनी होगी 0। कुल प्रमाण कितने सीगे 1, तो आंसर कितना आ गया 0, यानी कि संतरे की महक वाली गोली की संभावना कितनी होगी 0 होगी। इसी तरह हम आप करांगे नींबू दी महक वाली गोली दी संभावना। फार्मूला असी बारी बारी लिखना होंगे क्योंकि फार्मूले का ही मुल होंगे अनुकूल परमाणुओं की संख्या बटा कुल परमाणु। तो हम गल आ गई नींबू की महक वाली गोली की संभावना। तो नींबू की उन्हें गल की सी एक थैले में नींबू की महक वाली गोलियां हैं। तो जो आप थैले के हाथ पावे एक गोली बाहर कटांगे, जो एक गोली बाहर कटांगे तो अपने को एक गोली आऊगी नींबू वाली। तो कुल परमाणु कितने सी 1 ही सीगा, एक नूं एक ना कटांगे तो अपने को आ जाएगा 1 आंसर। इस तरीके दे नाल बेटा आप 6 सम है जिहड़ा उसनूं हल करना सीगा। हुण आपां करदे हां 7th सम। 7th सम आपां करदे हां बेटे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0.992 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ जन्म दिन एक ही दिन ना होने की संभावना अपन कितनी दी है 0.992 दी हुई है। इसकी की संभावना है कि इन्होंने 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। अपन जो क्वेश्चन को पुट आउट किया है प्रूफ करना है आप वो पुट करना है संभावना पता करो कि 2 विद्यार्थियों दे जन्मदिन एक ही दिन होंगे। ठीक है, तो आप ये पता करना भी 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होंगे। आप की करांगे आप पता करांगे मान लो 2 विद्यार्थियों दे जन्म दिन एक दिन होने की संभावना बराबर 1। ठीक है, तो हुण आपां की है इत्थे मान लिया, मान लो 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन होने की संभावना कितनी है 1 हैगी है। तो हुण उन्होंने क्या सी 3 विद्यार्थियों विच 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की संभावना। इत्थे लिखांगे 3 विद्यार्थियों दे 3 विद्यार्थियों विचों 2 विद्यार्थियों दे जन्मदिन एक दिन ना होने की संभावना बराबर 0.992 हो गया। ठीक है, तो हुण उन्हें अपन पूछा सीगा संभावना पता करो कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होंगे। ऐसे की करेंगे संभावना 2 विद्यार्थियों दे जन्म दिन एक ही दिन होने इज इक्वल टू।
ठीक है, कुल प्रमाण माइनस ना होने दा प्रमाण। कुल प्रमाण कितना है? एक। जन्मदिन एक ही दिन ना होने दे प्रमाण कितना है? दिस वन। तो हुण की आप एक दे विचों यह रकम स्टेटमेंट 1.000 0.992 ये सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। जो आप घटावांगे तो अपने को आंसर आएगा, इत्थे आ कैरी करांगे 10 आ जाएगा। 10 दे विचों 2 घटाता 8, इत्थे रह गया 9, 9 दे विचों 9 घटाया 0, 9 रह गया, 9 दे विचों 0 0। तो अपने को दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की संभावना कितनी बन जाएगी? 0.08 आएगा। ठीक है, मतलब कि जेकर दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होंगे तो उन्होंने संभावना 0.008% ही बनती है। ठीक है, इस तरीके बेटा इनका 7th सम है जिहड़ा यह सॉल्व होना सीगा। आप करते हैं 8th सम। बेटे 8th सम कहता एक थैले दे विच 3 लाल और 5 कालियां गेंदां हन। ठीक है, पहला आप स्टेटमेंट ही लिख लेने हैं। एक थैले विच लाल गेंदां हन 3 है जी। ठीक है, कालियां गेंदां दी संख्या 5 है। कुल गेंदां 8 बन जाएंगी जी। इस थैले दे विच एक गेंद अचानक बाहर कड्ढी जाती है, इस दी संभावना की होगी कि गेंद लाल होगी, लाल नहीं होगी। तो अपने तो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, गेंद लाल होगी, लाल नहीं होगी। ठीक है, पहला आप लिखांगे लाल गेंद होन दी संभावना बराबर अनुकूल प्रमाणों की संख्या बटा कुल प्रमाण। इंग्लिश मीडियम वाले जिहड़े बच्चे हैगे आ वो लिख सकते हैगे आ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गेंद, रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, फिर उस बाद लिखते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स प्रेफरेबल टू ई, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। कल फार्मूला चेंज होंदा है, बाकी कोई भी जिहड़ी स्टेटमेंट है वो ज्यादा चेंज नहीं होंदी, क्योंकि इत्थे स्टूडेंट्स अपने आप ही रेड बॉल्स पा सकते हैं। 3 है इज इक्वल टू ब्लैक बॉल, वो 5 है, टोटल बॉल्स 8 बन जाएंगियां। इस तरीके से पा सकते हैं। तो अनुकूल प्रमाणों की संख्या, लाल गेंद होने की संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के आउटकम्स कितने रहनियां? 3 रहनियां। तो कुल प्रमाण यानी कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 8 होएगा। तो आह इसका आंसर आ जाएगा। उस तरीके आप इत्थे लिख देंगे कालियां गेंदां होण दी संभावना। इंग्लिश बच्चे आ जिहड़े वो लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। तो इत्थे आ जाएगा अनुकूल प्रमाणों दी संख्या बटा कुल प्रमाण। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इत्थे कालियां गेंदां होने की संभावना की होएगी, जो आउटकम्स निकल के आएंगे वो अपने को आएंगे 5। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स 8 बनणगे। इस तरीके दे नाल बेटा यह सम है जिहड़ा यह सॉल्व होना सीगा। कल्ला इंग्लिश मीडियम दे विच कल्ला फार्मूला ही चेंज हुंदा है, बाकी माड़ी मोटी स्टेटमेंट्स जो आपां नूं लिखनी पैंदी है वो चेंज हुंदी है। नैक्सट सम है बेटे अपने कोले 9th। इहदे विच कहंदे एक थैले दे विच 5 लाल बंटे हन। ठीक है, 8 चिट्टे बंटे हन, 4
हरे बंटे हैं। तो आप इत्थे लिखांगे लाल बंटे इज इक्वल टू 5, चिट्टे बंटे इज इक्वल टू 8, हरे बंटे इज इक्वल टू 4। तो इत्थे लिखांगे कुल बंटे 8 ते 5 13, 13 ते 4 17। तो कुल बंटे है जिहड़े वो अपने कोले 17 बन जाते हैं। इंग्लिश बच्चे है जिहड़े वो लिख सकते हैं रेड मार्बल, इत्थे लिख सकते हैं वाइट मार्बल, इत्थे लिख सकते हैं ग्रीन मार्बल, इत्थे आ गया टोटल मार्बल। ठीक है। तो हुण उसने आपनू की पूछा, उसने आपनू पूछा इसकी संभावना की है होएगी कि कढ़िया गया बंटा लाल है, कढ़िया गया बंटा लाल है। तो आप इत्थे लिखांगे लाल बंटे दी संभावना। इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इज इक्वल टू अनुकूल परमाणुओं की संख्या बटा कुल परमाणु। इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे नंबर ऑफ आउटकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल्स। ठीक है। अनुकूल परमाणुओं की संख्या। तो हम लाल बंटे आप देखेंगे, लाल बंटे अपने को कितने हैं 5। ठीक है। 5 बंटिया के विचों एक बंटा निकल के आएगा तो कुल परमाणु कितने है 17। तो यह आंसर बन जाएगा। बिल्कुल ही आसान जे सम है। जेकर अगला करेंगे तो चिट्टा बंटा, आप इत्थे लिखांगे चिट्टे बंटे दी संभावना इज इक्वल टू अनुकूल परमाणुओं की संख्या बटा कुल परमाणु। तो चिट्टे बंटे अपने को कितने आ रहे हैं 8 आ रहे हैं। तो आप 8 लिख देंगे। कुल परमाणु अपने को वही रहेंगे 17 ही रहेंगे। तो यह आंसर आ गया। उस तो बाद अपने को हरा नहीं है, इत्थे आप लिखांगे हरा बंटा नहीं होने की संभावना बराबर अनुकूल परमाणुओं की संख्या बटा कुल परमाणु। तो उसने क्या हरा बंटा नहीं है। जे हरा बंटा नहीं होएगा तो बंटा जो भी आप बैग दे विचों दी कड्डांगे जां तां ओह लाल निकलेगा जां ओह चिट्टा निकलेगा। तो यानी कि चिट्टा या लाल दोनों ही बंटे हो सकते हैं। तो 8 ते 5 आप ऐड कर देंगे। 8 ते 5 कितना बन गया 13 बन गया। तो अपने को अनुकूल परमाणुओं की संख्या कितनी बनेगी 13 बनेगी बाय 17, क्योंकि अंदर विच हरा बंटा आप ऐड नहीं करांगे। इस तरीके के बेटा इनका 9th सम है जिहड़ा यह सोल्व होना सीगा। हुण आपां करदे हां 10th सम। टेंथ सम विच कहंदे कि बेटे एक पिगी बैंक हैगा। पिगी बैंक विच 50 पैसे दे 100 सिक्के हैं। ठीक है। 50 पैसे दे 100 सिक्के है। आप इत्थे लिखांगे 50 पैसे दे सिक्के हैं बराबर 100। 1 रुपए दे 50 सिक्के हैं, इत्थे लिखांगे 1 रुपए दे सिक्के हैं 50। 2 रुपए दे 20 सिक्के हैं 2 रुपए दे सिक्के हैं 20। 5 रुपए दे 10 सिक्के हैं 5 रुपए दे सिक्के हैं 10। ठीक है। तो इनू आप लिखांगे इत्थे कुल सिक्के हैं बराबर 100 दे विच 50 जोड़िया 150 दे विच 20 जोड़े 170 180। तो टोटल अपने को जिहड़े बंटे बनणगे वो अपने को बन गए
टोटल ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਏ 180। ਜੇਕਰ ਪਿਗੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਕਾ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ बराबर अनुकूल परमाणा दी संख्या बटा कुल परमाण। तो हुण आपां इहदे विच स्टेटमेंट दे विच जावांगे, आपां वेखांगे भी 50 पैसे दे सिक्के अपने कोले किन्ने आ। 50 पैसे दे सिक्के किन्ने होणगे अपने कोले 100। जेकर आपां उहनूं पिगी बैंक नूं पुट्ठा करांगे तां उहदे विच 100 सिक्कियां दे विचों एक सिक्का डिगेगा। तो अनुकूल प्रमाणा की संख्या कितनी बनेगी 100 बनेगी। कुल प्रमाण अपने को बनने 180। यानी तुम कट सकते हो 2 ते गया 5 आ गया, 2 ते गया 9 आ गया, 5/9 इसका आंसर आ जाएगा। उस तो बाद उसने पूछा कि 5 रुपए दा नहीं होगा, ऐसे लिखांगे 5 रुपए दे सिक्के नहीं होने दी संभावना बराबर अनुकूल परमाणा दी संख्या बटा कुल परमाण। हुण उन्होंने कहा भी 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, यानी कि जो 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा तो आह जो 10 सिक्के है ये नहीं होंगे, पर बाकी तो कोई भी सिक्का हो सकता है। ਜਿਹੜਾ बाकी कोई भी सिक्का हो सकता तो जो आप पिगी बैंक ਨੂੰ टेढ़ा करांगे उल्टा करांगे ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 पैसे का भी सिक्का निकल सकता है, 1 रुपए वाला सिक्का भी निकल सकता है, 2 रुपए वाला भी सिक्का निकल सकता है। तो आप ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ऐड कर लांगे 100 50 150 20 170। तो अनुकूल प्रमाणों की संख्या कितनी बन जाएगी 170। टोटल प्रमाण कितने बन जाएंगे 180। इनू आप कट ऑफ कर देंगे तो अपने को आंसर आएगा 17/18। ठीक है, इस तरीके दे नाल बेटा इहदा जिहड़ा 10th सम हैगा वो सॉर्ट आउट होना सीगा। क्लास दे विच आपां करांगे इन्ना ही। नैक्सट क्लास दे विच आपां फिर मिलांगे इस तो अगले सम लैके। आपां अज सम किते जिहड़े किते आ वो हैगे चौथे सम तो लैके 10th सम तक।